Hello students, my name is Kujit Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, today we are going to start the next chapter, that is strategies for enhancement in the food production. In this chapter we will study about animal husbandry and some new techniques that can be used for increasing the food production. So let's start. Okay students, as we know that the population of the world is increasing at an alarming rate. So if we want to fulfill the food demands of this increasing population, enhancement of the food production is a necessity. We can apply the biological principles to animal husbandry and to plant breeding to enhance the food production. We have different techniques like tissue culture, embryo transfer. They play a very important role in enhancing the food. So this chapter, student, is strategies for enhancement in the food production. So we will study about animal husbandry and plant breeding programs, and we will see how these techniques help us in increasing our food production. So let's start. First of all, we will study about animal husbandry. Animal husbandry is an agricultural practice of breeding and raising livestock. Livestock is क्या होता है बच्चे? Livestock means domestic animals हैं जेड़े जो which provide us milk दे रहे ने, flesh दे रहे ने, hide दे रहे ने, and they includes for example cows हैं, buffaloes हैं, sheep है, goat है, elephants हैं, कैमल हैं, ये सारा की है लाइफ स्टॉक है. सो लाइफ स्टॉक जेडी प्रोडक्शन है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा. सो एनिमल हस्बेंड्री की है. एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक. ठीक है. सो इट इज़ अ साइंस इन विच डील्स विद द रियरिंग, फीडिंग, caring या breeding या how to control the disease of the animals, that is animal husbandry. सो एनिमल हस्बेंड्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਥ, how to take care of animals from the diseases and proper breeding, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟॉक ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਜ਼ ਹੈ, ਬਫੈਲੋਜ਼, ਪਿਗਸ, ਹਾਰਸਿਸ, ਸ਼ੀਪਸ, ਕੈਮਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਮਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ. then dairy farm management. डायरी की है बच्चे ਆਪਾਂ अगर ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਸੋ ਕੈਟਲ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਦੋ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਿਲਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ. ਸੋ 95% ਆਫ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਬਾਈ ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਬਫੈਲੋਜ਼. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ. ਨਾਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ the quality and quantity of the milk production. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ that is selection of the good breed. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਲਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਫੈਲੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰੀਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਾਈ ਡੈਸੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ. ਸੋ ਬਰੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬਰੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੀਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਾਊਜ਼ ਜਾਂ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਜ਼ ਹੈ, ਕਾਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ. ਸੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਡਾਇਰੀ ਕਾਊਜ਼. ਐਂਡ ਕੁਝ ਡਰੌਟ ਬਰੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪੂਲਿੰਗ ਕਾਰਟਸ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਐਨੀਮਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੌਟ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੌਟ ਬਰੀਡਸ ਹੈ.
उसी तरह कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स होंगे ने, दे आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जिमें हॉलस्टीन है। हॉलस्टीन जी है बहुत सुपीरियर ब्रीड है और अप्रॉक्सीमेटली 3000 लीटर्स मिल्क प्रोड्यूस करती है पर ईयर। सो इट इज़ फ्रॉम हॉलैंड। इसी तरह ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड का है, डुअल पर्पस ब्रीड हैगी है, जर्सी है। सो सब तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जोड़ा पॉइंट सी वो है कि अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हाँ, सो जिस लिए असी कैटल फार्मिंग कर रहे हाँ, जिस पर्पस लिए कर रहे हैं, सो सानू इस चीज़ का ध्यान रखना पेगा। दैन जो डायरी फार्म है उसकी मैनेजमेंट में वैल हाउस्ड फॉर एनीमल्स, एनीमल शेल्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो एनीमल शेल्टर जो है उत्थे एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, वो एक प्रोटेक्टेड होना चाहिए हीट, कोल्ड, रेन एंड फ्रॉम अदर एनीमल्स, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और उत्थे जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए एनीमल्स वास्ते। ठीक है, और मेनटेन डिजीज़ फ्री कैटल एंड एनवायरनमेंट, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। सब तो पहला तो स्पेशियस होना चाहिए ताकि उत्थे एनीमल्स जो हैं वो कंफर्टेबली स्टे कर सकन, और उदा जो फ्लोर है उत्थे प्रॉपर मतलब स्लोपिंग फ्लोर होना चाहिए ताकि जो एनीमल एक्सक्रीटा है उदा प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो हो सके। दैन फीडिंग विथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूडर, आप उन्होंने किस तरह का फीड दे रहे हैं, एक बैलेंसड होना चाहिए, वो रफेजेस भी होने चाहिए ने और उसके न्यूट्रिशियस कॉन्सनट्रेट्स होने चाहिए हैं, जिमें प्रोटीन्स के दूसरे न्यूट्रिएंट्स होन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर विजिट ऑफ द डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डॉक्टर? वेटनरी डॉक्टर। सो वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं कोई हेल्थ प्रॉब्लम है अगर फॉर्म एनीमल्स नू उसनू आइडेंटिफाई करते हैं और उसनू बहुत जल्दी रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ने, मेजर्स ने विद विच वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। सो बच्चे इत्थे कुछ मैं वैराइटीज़ शो किते हैं इंडिजिनस, जिन्होंने आप देसी वैरायटी कहने हैं। सो साहिवाल हैगा, पंजाब और हरियाणा का ब्रीड है। दैन गीर इज़ देयर, रेड सिंधी है। उस तो बाद एग्जॉटिक ब्रीड ने जिन्होंने आप विदेशी भी कहने हैं बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। सो इस दे विच जिमें काओ दे ब्रीड्स हैं, ये हॉलस्टीन है, आई टोल्ड यू दिस इज़ फ्रॉम हॉलैंड, राइट। सो ए ब्राउन स्विस हैगा, ए डुअल पर्पस ब्रीड है, मेल एंड फीमेल दोनों यूजफुल ने इसके, एंड इट इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड, राइट। सो now we will come to the next branch under the animal husbandry or next type of animals, and that is honeybees, and this branch is known as apiculture. What is apiculture? Apiculture is the maintenance of honeybee hives for the production of honey. ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ, ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਰੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਵਸ ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एट कमर्शियल लेवल। ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली जो ਆਪਾਂ हनी बी का स्पीशीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है बच्चे एक इंडिजिनस स्पीशीज़ है, देसी वैरायटी है हनी बी का, इनू आप इंडियन बी कहने हैं और ये बहुत कॉमन स्पीशीज़ है जो इंडिया के विच मिलती है और इसनू डोमेस्टिकेट करना बहुत आसान है बिकॉज ये जी बी है बहुत जेंटल होंगी है। ठीक है, ओके, नैक्सट हैगा आपां एपीकल्चर क्यों करना है। ठीक है, एपीकल्चर वर्ड का मतलब थोड़ा समझ आ गया बच्चे, इट्स द प्रोसेस ऑफ रीयरिंग ऑफ हनी बीज इन द आर्टिफिशियल हाइव्स। आर्टिफिशियल छत्तियां दे विच जो कमर्शियल लैवल वास्ते आप हनी बीज नू रीयर कर रहे हैं दैट इज़ एपीकल्चर। सो जो हनी है सब तो पहला आप देखो कि जो हनी है उसकी की इंपॉर्टेंस है। सो जो आप एपीकल्चर करना है तो सानू हनी भी मिलता है, बी वैक्स भी मिलती है, बी विनोम्स भी मिलते हैं। सो इन्हां दी की इकनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सब तो पहला जो हनी है, हनी जो है वो जोड़े वर्करस होंगे ने, जो हनी बी का छत्ता होंगे बच्चे उस क्वीन हनी बी होंगे, वर्करस होंगे ने और ड्रोन्स होंगे ने। सो मैक्सीमम नंबर जो होंगे देयर इज़ जस्ट वन क्वीन, बट जो मैक्सीमम नंबर होंगे किसका होंगे, वर्करस का होंगे। लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉल साइज़ होंगे ने और बहुत एक्टिव होंगे हैं क्योंकि वर्करस ही की करते हैं वो एक्चुअली जोड़ा सारा काम है जिमें वो मोस्ट एक्टिव जो जाके नेक्टार लेके आते हैं और जो मेन उन्होंने ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੋਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ।
सो जो हनी है स्टूडेंट दैट इज़ प्रोड्यूस बाय वर्कर्स। सो वर्कर्स जो हैं वो नेक्टार कलैक्ट करते हैं और जो हनी है ये रिच सोर्स है एनर्जी का। इस शुगर, मिनरल्स, एंजाइम्स, वाइटामिनस एंड पॉलन्स होंगे ने। सो इस हनी की बहुत ज़्यादा मैडिसिनल वैल्यू है, फूड वैल्यू है। सो इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट मैनी डिसऑर्डर्स, जिमें कोई डाइजेशन है, वॉमिटिंग है, स्टमक डिसऑर्डर है, कोल्ड है, कफ है, सो अल्सर्स ऑफ टंग है ने, स्टमक डिसऑर्डर्स ने, उस लिए हनी जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, नैक्सट जोड़ा हैगा हनी जोड़ा है इट हैल्प्स इन बिल्डिंग अप हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में बिल्डअप करने वास्ते हनी यूज़ हो रहा है। उस तो बाद ब्रैड, केक्स, बिस्किट्स वास्ते यूज़ हो रहा है। दैन हनी के जोड़े एपीकल्चर के नाल जी वैक्स मिलती है स्टूडेंट्स, सो इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मैटिक्स एज अ लुब्रीकेंट यूज़ हो रही है, कोल्ड क्रीम, पॉलिशेज़, शेविंग क्रीम्स के विच, ऑइंटमेंट्स के विच। उस तो इलावा जो हनी का जो हनी बी का जो विनोम होंगे जिन्होंने आप उसका डंक कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर सर्टेन डिजीज़, जिस तरह आर्थराइटिस को क्योर करने वास्ते आप उसका विनोम यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एपीकल्चर। नाउ नैक्सट इज़ द पोल्ट्री। ओके, पोल्ट्री जिसनों बच्चे आप मुर्गी पालन भी बोलते हैं। हाँ, पोल्ट्री कमर्शियली आप यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सो आप एनिमल हस्बेंड्री की कैटल फार्मिंग कर लिया, एपीकल्चर कर रहे हैं। नैक्सट इज़ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड इट इज़ कंसर्न विद वॉट, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, फाउल हैं, यूज्ड फॉर फूड एग्स, दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री। सो पोल्ट्री इज ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इज कंसर्न विद रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड फॉर मीट। सो पोल्ट्री विच केड़े बर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह चिकन है, डक्स ने, गीज हैं, टर्कीज़ है, ठीक है, पिजन्स होंगे ने, क्वेल्स होंगे ने। सो ये एनिमल्स जो हैं ये पोल्ट्री फार्मिंग दे विच आपां इन्हां रियर करते हैं। ठीक है, इसनों असीं पोल्ट्री फार्मिंग कहने हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट, दैट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग, राइट। नाउ पैरामीटर्स फॉर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, जिस तरह आप कैटल दे विच देखा कि किस तरह असी मैनेजमेंट करांगे ताकि आप अपनी मिल्क प्रोडक्शन जो है उसनों इनक्रीज़ कर सकीए। इसीलिए जिहड़ा साडा पोल्ट्री फार्म हुंदा है उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा आप ब्रीड्स लैने हैं वो ब्रीड्स जोड़े ने वो सुपीरियर होने चाहिए ने। जिस तरह वाइट लेगहॉर्न ब्रीड जिहड़ी है वो बहुत सुपीरियर है, एक एग्जॉटिक ब्रीड है, विदेशी ब्रीड है और लार्ज साइज़ के एग प्रोड्यूस करती है। बर्ड स्मॉल साइज़ है बट प्रोड्यूसिस लार्ज साइज़ एग्स और इसका जो फूड इनटेक है वो कंपैरेटिवली घट है एज कंपेयर टू इंडिजिनस ब्रीड्स। सो ये अच्छी सब तो पहला फर्स्ट पॉइंट है कि सानू जी ब्रीड सिलेक्ट करनी है और डुअल पर्पस है कि एज अ एग असी इनू यूज़ कर सकते हैं, एग लेयर या मीट यील्डिंग भी होए। सो सब तो पहला जी सिलेक्शन ऑफ ब्रीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन मेनटेनिंग प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म जोड़ा है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और उस तो बाद उसके विच वाटर का या सनशाइन का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। बिकॉज जोड़े बच्चे ग्रोथ है चिकन्स वगैरह के ग्रोथ वास्ते, एग प्रोडक्शन वास्ते सानू कम से कम 14 to 18 ईयर्स जोड़ा है वो फोटो पीरियड रिक्वायर्ड है। सो पोल्ट्री फॉर्म जोड़ा है उन्होंने आप रात को भी नाइट ते भी इट शुड बी कैप्ट लिट, right? So it is must for the maximum growth for the chickens. So floor जो है वो भी covered होंदा है with litter जिमें paddy या sawdust दे नाल आपां उसनू cover कर सकते हैं। Proper food and supply arrangement होना चाहिए, health और hygiene का भी ध्यान रखना चाहिए। Same conditions उन्हों का फीड किस तरह का होएगा, जिहड़े चिकन्स ने दे आर फीड ऑन द ग्रेन्स, ऑयल केक्स उन्होंने दिते जाते हैं, ठीक है, मीट मील दिता जाता है। सो प्रॉपर जी डाइट है वो बैलेंसड होनी चाहिए है, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, वो मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, ये सारा गुड फीड जोड़ा है। अगर असी गुड फीड देंगे पोल्ट्री बर्ड्स नू दैन वो हेल्दी होंगे एंड दे विल ले मोर एग्स। ओके, नाउ so there are few just two pictures showing you the improved breeds of the cattle, that is Jersey and poultry bird। तो मैं हुने दस्या सी white leghorn, it is a very good layer, exotic breed है। ओके ओके, सो नैक्सट बच्चे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसैस करन जा रहे हैं, दैट इज़ जो आप एनीमल नू ब्रीड करना है तो एनीमल्स जोड़े ने वो नैचुरली भी ब्रीड करते हैं और आर्टिफिशियल ब्रीड भी करते हैं। सो जी एनीमल्स की टाइप ऑफ ब्रीड्स है जो असी नॉर्मल एनीमल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस लिए यूज़ कर रहे हैं। सो 2 टाइप्स की होंगी है। सो फर्स्ट जी है वो है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मीन्स द क्रॉस मेड बिटवीन द सेम ब्रीड, ठीक है।
or mating between closely related individuals within the same breed। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਬਰੀਡ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸੇਮ ਬਰੀਡ ਦਾ ਮੇਲ ਲਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਬਰੀਡ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर अबाउट 4 to 6 जनरेशन। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਲਈ पेरेंट्स उसके लिए उसनू क्रॉस किया, अपने को प्रोजनीज आए, सो उस प्रोजनी यू रिमेंबर F1 जनरेशन, सो वो जो प्रोजनीज आएंगे उन्होंने फिर आप पेरेंट्स सिलेक्ट करांगे फॉर F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन जो प्रोजनी आएगी उन्होंने फिर पेरेंट्स सिलेक्ट करांगे फॉर F3 जनरेशन। सो इस तरह असी ब्रीडिंग करांगे एनिमल्स की ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन्स। ठीक है, बाय सिलेक्टिंग सुपीरियर मेल्स लांगे और जो कि एक गुड वर्किंग एनिमल होएगा, और सुपीरियर फीमेल लांगे जिसका कि मिल्क प्रोडक्शन जो है पर लैक्टेशन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होएगा। सो उस तो बाद प्रोजनीज नू आपां प्रोजनीज आएंगे उसनू आपां इवैल्यूएट करांगे एंड दैन फर्दर पेरेंट्स के रूप च उन्होंने सिलेक्ट करांगे। सो इत्थे एक मैं पिक्चर लिया है जिस तरह आपां ए जिहड़ी है वो डोमीनेंट एलील है, आपां देख सकते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए जो है ए होमोजाइगस डोमीनेंट्स ने। सो क्रॉस हो रहा है एज ए पेरेंट्स, सो साडे कोल प्रोजनीज आ रहे हैं, जिवें अपने कोल 1 2 3 प्रोजनीज आए, ठीक है, या 1 2 3 4 प्रोजनीज है ने। दैन उन्होंने अगर आपस में सेम ब्रीड आपां क्रॉस कर रहे हैं वो इन ब्रीडिंग है, और अगर दूसरे दे नाल कर रहे हैं तो आउट ब्रीडिंग हो गया, राइट। तो इस दे नाल जिवें अपने को रिसेसिव करैक्टर आ रहा है स्मॉल ए, तो इसका ये फायदा होंदा है, इसकी सिग्निफिकेंस होंदी है कि इस दे नाल जिहड़ी अनडिजायरेबल जीन है, बिकॉज रिसेसिव करैक्टर जो है वो डेलीटेरियस है, मीनस हार्मफुल है। सो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स नूं आपां एलिमिनेट कर सकते हैं सिलेक्ट करके, राइट। सो ये जिहड़ा इन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग के काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि ये नाल होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होंदी है। होमोजाइगोसिटी मीनस इस दे नाल सानू प्योर लाइन्स मिलते हैं, इक्को तरह के करैक्टर्स अगे अगे हर जनरेशन दे विच पास हो रहे हैं। होमोजाइगस इसनू बोलांगे, हाई होमोजाइगोसिटी है, प्योर लाइन्स इस दे नाल बनते हैं, और इस दे नाल असी हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो हैं उसनू सिलेक्शन दे नाल एलिमिनेट कर सकते हैं। बट बच्चे इन ब्रीडिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे ने। डिसएडवांटेज ये है इस दे नाल इन ब्रीडिंग डिप्रैशन हो जाती है, जो आप सेम करैक्टर्स बार बार हर जनरेशन के कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इस नाल इनब्रीडिंग डिप्रैशन हो जाता है, जोड़ा एनीमल का फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी जी प्रोडक्टिविटी है वो भी घट जाती है, राइट। सो इनब्रीडिंग डिप्रैशन के नाल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिप्रोड्यूस जी हैगी वो रिड्यूस हो जाती है। सो सैकेंड जो प्रोसैस मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है, फस्ट आप इनब्रीडिंग देखिया कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रीड्स जिहड़े हैं आप एनीमल ब्रीडिंग प्रैक्टिसिस लिए आप दो तरह के टाइप्स यूज कर रहे हैं एनीमल ब्रीडिंग लिए। फस्ट इन ब्रीडिंग आप देखा, सैकेंड है स्टूडेंट्स आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनीमल्स ऑफ द सेम ब्रीड्स। आप उसे ब्रीड दे लै सकते हैं बट अनरिलेटेड लै सकते हैं, और उन्होंने एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट होएगा, अनरिलेटेड होएगा, ठीक है। एंड देन बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स, दो डिफरेंट ब्रीड्स भी लै सकते हैं और दो डिफरेंट स्पीशीज़ भी लै सकते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग च आप कहीं करना है, ब्रीड सेम लेना है लेकिन एनीमल्स अनरिलेटेड हैं, उन्होंने एंसेस्टर्स अलग हैं, या आप ब्रीड्स ही दो डिफरेंट लैनिया, ठीक है, या आप दो डिफरेंट स्पीशीज़ इंटायरली डिफरेंट स्पीशीज़ ही लैनिया। ये सब कुछ आएगा इन आउट ब्रीडिंग के विच। सो इट इज़ ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनीमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन और डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीशीज़। ओके, सो इत्थे आपां एक क्रॉस ब्रीडिंग दे रहे हैं। वॉट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग की है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड ਲਈ आपां ਉਹਦਾ मेल ले लिया, उसकी आपां मेटिंग कराई विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ दी अनदर ब्रीड। सो सपोज करो एक ब्रीड जिहड़ी हैगी है वो ए है, दूसरी ब्रीड जिहड़ी हैगी है बी है। सो इन्हां दो, एक दा आपां मेल ले लांगे और दूसरी दा आपां फीमेल ले लांगे, सो इन्हां दा आपां क्रॉस करांगे, ठीक है। सो इसनूं असीं क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। सो इहदे नाल जिहड़ा एनीमल है वो की होएगा, हाईब्रिड प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट इज़ कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्योंकि हाईब्रिड जो होएगा वो कॉम्बीनेशन हो गया, दोनों ब्रीड्स का की हो गया, कॉम्बीनेशन हो गया। सो इस दे नाल साडे जिहड़े डिज़ायरेबल करैक्टर्स ने, दोनों ब्रीड्स के जो डिज़ायरेबल करैक्टर्स होंदे ने वो असीं अचीव कर सकते हैं। दैन नैक्सट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसैस है जिन्हों आप कहते हैं इंटर स्पैसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स वॉट इज़ इंटर स्पैसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? सो ये एक और टेक्नीक है जिस दे विच आप ब्रीड कर रहे हाँ इंटर ब्रीडिंग ऑफ मेल एंड फीमेल एनीमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़।
ਆਪਾਂ 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ही लै रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ इंटरब्रीडिंग ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज़। तो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ दे आपां मेल और फीमेल लांगे। सो इट हैल्प्स इन कंबाइनिंग गुड क्वालिटीज़ ऑफ 2 स्पीशीज़, दोनों स्पीशीज़ दे गुड क्वालिटीज़ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एक प्रोसैस है। इससे खास करके जिहड़े मतलब कि जिहड़े मेल वर्क एनिमल्स ने वो बहुत अच्छे हैं इसके। जिवें फर्स्ट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, तुहानूं नोट करना पेगा, हॉर्स एंड डोंकी। हॉर्स एंड डोंकीज आर डिफरेंट स्पीशीज़, हॉर्स एक अलग स्पीशीज़ है, डोंकी अलग स्पीशीज़ है। देन देयर इज़ अ म्यूल। म्यूल क्या चीज़ है? म्यूल इज़ ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। म्यूल जो है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है जो कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स ਨੂੰ क्रॉस करके बनता है। और ये बहुत मतलब कि जिवें आपां माउंटेन्स ते देखते हाँ, अडैप्टिड है टू वर्क हार्ड इन द माउंटेन रीजन, बहुत स्ट्रोंग होंगे हैं, स्टडी होंगे हैं। सो ये हॉर्स का एंड जिहड़ा डोंकी है दोनों के करैक्टर्स आ गए। इसी तरह हिनी की है, ये भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, बट ये फीमेल डोंकी है और मेल हॉर्स है, दैट इज स्टैलियन। फीमेल डोंकी इज जेनी एंड मेल हॉर्स इज स्टैलियन। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ਆਪਾਂ कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीडिंग ਨੂੰ। देयर इज़ अ प्रोसैस नोन एज आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ आर्टिफिशियल वे ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ सुपीरियर क्वालिटी ਦਾ ਜਿਹੜਾ बुल है उसका सीमेन ਨੂੰ कलैक्ट कर सकते हैं और उस ਨੂੰ आर्टिफिशियल वे ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ इंजैक्ट कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल्स। सो सीमेन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਇਓ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? ਕ੍ਰਾਇਓ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਇਓ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਇਓ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੈਨੇਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ। Okay, now students, there is an important process that is known as MOET. MOET is multiple ovulation and embryo transfer. So इस टेक्नोलॉजी ਨੂੰ बहुत सक्सेसफुली ਅਸੀਂ यूज़ कर रहे हैं और इस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक process है जिस ਦੇ ਨਾਲ कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ हर्ड साइज़ है कैटल ਦਾ ਉਹ इनक्रीज़ कर सकते हैं। सो इस ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट है कि सब तो पहला इस ਦੇ ਵਿੱਚ एक process है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ नॉर्मल ਹੈਲਦੀ ਕਾਊ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, FSH ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦ ਓਵਰੀਜ਼, ठीक है। फॉलिकुलर मैचुरेशन होंगी है, इसनों बस सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। लाइक नॉर्मली 6 to 7 एग्स पर साइकिल रिलीज़ होंगे हैं, ठीक है। सो जी ये सुपर ओव्यूलेटेड जी फीमेल होंगी है 6 to 8 साइकल्स इसने रिलीज़ किए, इसकी मेटिंग कराई जाती है विद सिलेक्टेड बुल जो कि सुपीरियर है, या फिर आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन भी कर सकते हैं विद द सीमन ऑफ गुड मेल। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया। ਜਦੋਂ ਐਂਬਰੀਓ ਏਜ टू 30 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸਰਜੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर द ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ MOET ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਪ, ਬਫੈਲੋਜ਼, ਰੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो इस ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ओके, सो बच्चे हुण आपां नैक्सट एनीमल हस्बेंडरी के ब्रांच में जा रहे हाँ, दैट इज़ नोन एज फिशरीज़। और फिशरीज़ जो है इसनूं आपां बोलते हाँ पिस्सीकल्चर, आपां इसनूं बोलते हाँ पिस्सीकल्चर और फिश फार्मिंग भी इसनूं बोलिया जा रहा है। द वास्ते वर्ड हो रहा है पिस्सीकल्चर। सो दिस इज़ पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर की है ये फिश फार्मिंग है विच इन्वॉल्व्स द रियरिंग, विच इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग ऑफ फिशेज़ एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो। अदर एक्वेटिक ब्रीडिंग आपां उसनूं करना है और साइंटिफिकली आपां उसनूं करते हाँ फॉर सैलिंग परपस। सो फिशिज़ नूं पॉन्ड्स दे विच टैंक्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उत्थे इन्हां दी रियरिंग ते ब्रीडिंग की जाती है। दूसरे भी एक्वेटिक एनिमल्स ने, फॉर एग्जाम्पल लॉबस्टर्स ने, प्रॉन्स ने, दैन यू हैव क्रैब्स हैगे ने। सो ये सारे किहदे विच आउणगे, पिस्सीकल्चर दे विच आउणगे। कुछ कॉमन फ्रैश वाटर फिशिज़ ने जिवें कैटला है, रोहू है, दैन कार्प है, ये फ्रैश वाटर फिशिज़ ने जिस जो कि फिश फार्मिंग दे विच यूज़ होंदे ने।
एंड कुछ मेराइन हैगे ने जिमें हिल्सा है, सार्डाइन्स हैगे ने, ठीक है, पैम्फ्रेट्स हैं। दैन ब्लू रेवोल्यूशन आपां किस नूं बोलिया, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द फिश, जो साडे टैक्नीक्स दे नाल जिहड़ी फिशिज़ की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है, उसनूं आपां बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। बिकॉज फिश एज अ फूड इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फिश एज अ फूड और एंड सैकेंड जिहड़े आपां जदों आपां पिसीकल्चर करते हाँ जो सानूं बाई प्रोडक्ट्स उसदे विच मिलते हैं, सो इस दे नाल एक रेवोल्यूशन आया है दैट इज़ नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन, जदों आपां साइंटिफिक तरीके दे नाल फिशिज़ की रीयरिंग और ब्रीडिंग कर रहे हैं और इन द पॉन्ड्स एंड द टैंक्स। सो दिस हैज़ ब्रॉट ब्लू रेवोल्यूशन। फिश प्रोडक्ट्स आप देखिए तो और न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक एनिमल फूड है, इस दे विच प्रोटीन्स हैं, वाइटामिनस हैं, मिनरल्स हैं, और इस दे विच जिहड़ा फैट कंटेंट है स्टूडेंट वो बहुत घट है। खास करके वाइटामिन जिहड़ा हैगा वाइटामिन ए एंड वाइटामिन डी, वाइटामिन ए एंड वाइटामिन डी दा रिचेस्ट सोर्स ने प्रोटीन्स, ठीक है। दैन उस तो बाद वाइटामिन ए जिहड़ा हैगा वो फिश के लीवर दे विच मिलता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर विजन, फॉर योर आईसाइट्स, ठीक है। इसनूं आपां जिहड़ा कॉड लीवर ऑयल भी बनता है फिशिज़ दे विचों। दैन होर वाइटामिनस ने, वाइटामिन B6 है, B12 है, नायासिन है, मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस, पोटैशियम, आयरन। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिशिज़ जिहड़े ने, फिशिज़ प्रोटीन कॉन्सनट्रेट भी सानूं मिलते हैं, आपां उस ते बना सकते हैं जिसदे कोल 80 to 90% प्रोटीन्स होंदे ने, ठीक है। सो फिशिज़ दा जिहड़ा ऑयल है दैट इज़ वेरी रिच इन द वाइटामिनस। दैन उस तो बाद साडे जिहड़ा अपना पिसीकल्चर है उसकी एक होर वैल्यू है, जिहड़ी गैम्ब्यूजिया फिश है वो मॉस्किटो लार्वा नूं खांदी है। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर अपना डिजीज़ का करना है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया का, सो उसके वास्ते भी जिहड़े फिशिज़ ने वो यूज़ हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स एक पिसीकल्चर सीगा, और पिसीकल्चर जो है दैट इज़ ऑल्सो अनदर ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। अज आपां बच्चे एनिमल हस्बेंड्री किता, एक टेक्नीक्स आपां देखिया जिस दे नाल आपां एनहांसमेंट कर सकते हाँ इन द फूड प्रोडक्शन। इन एनिमल हस्बेंड्री वी स्टडीड अबाउट द कैटल फार्मिंग, then apiculture, then pisciculture, and then one more thing, then we studied about the pisciculture, the apiculture, the cattle farming. So this is all about these are the various branches that we covered under the animal husbandry. So thank you very much for watching today's lecture.